Morning to respected dignitaries, esteemed faculty members, honorable guests and dear students. It is our privilege to welcome you all to today's insightful session on entrepreneurial leadership in the age of disruption, emerging management trends and startup revolution. In today's rapidly evolving world, innovation and entrepreneurship are not just choices, they are necessities. This session aims to explore how emerging management trends and the startup ecosystem are transforming leadership in the modern era. This event is organized under the dynamic platform of the institution's Innovation Council, an initiative that promotes innovation, entrepreneurship, and startup culture among students and faculty members. The IIC plays a vital role in nurturing creative ideas, encouraging entrepreneurial thinking, and preparing students to become future innovators and leaders. Before we proceed further, we would like to extend a warm welcome to our respected dignitaries whose presence make this event truly special. We cordially welcome our respected Madam Principal, Dr. Surendra Kaur, whose support and remarkable efforts make such event possible. We also extend a warm welcome to IIC convener Mrs. Vivek, and I also want to extend a warm welcome to our program conveners, Dr. Rita Singh, Head Department of English, and Dr. Meenakshi Sani, Head Department of Commerce. Their commitment and guidance have played a crucial role in organizing this wonderful session. Please make a huge round of applause for both of them. We would also like to acknowledge the dedicated efforts of our program coordinators, Dr. Natasha Bajaj, Innovation Ambassador, and Ms. Manika Sethi, Innovation Ambassador. Please give a huge round of applause to them as well. Now, it is our great pleasure to introduce our esteemed guest speakers for today's session. We are honored to welcome Ms. Ginni Bakshi. As a branch head, she specializes in educational consultancy, training and skill development across various academic and professional domains. She provides expert guidance in consultancy, communication skills, soft skills and career development, helping individuals and organizations achieve their goals. Her focus is on delivering strategic insights, knowledge and skill-building solutions to drive success in education and the professional world. We welcome you, ma'am, in the college premises. Please give a huge round of applause for Ms. Ginni Bakshi. We also cordially welcome Ms. Arushi Negi, an expert in verbal ability and communication skills. Ms. Arushi Negi is a manager and verbal faculty at Hit Bullseye, specializing in training students for CAT, banking and other competitive exams. With over 6+ years of expertise in the education and training sector, she has mentored countless aspirants in areas such as personal interviews, group discussions, resume building, email writing and spoken English. Her sessions are known for being interactive, practical and empowering, enabling the students to communicate with confidence, present themselves effectively and succeed in competitive as well as professional environments. Both of them are inspiring personalities who have made remarkable contributions in their respective fields and continue to motivate young minds to think innovatively and lead with confidence. Please give a huge round of applause for both of them. To express our gratitude and respect, we would now like to invite our esteemed dignitaries on the stage for the felicitation ceremony. May I request our respected senior faculty members, Dr. Rita, Dr. Meenakshi, Dr. Natasha ma'am, to kindly come forward and present a token of appreciation in the form of gifts and planters. We also request Mamta ma'am to please come on the stage. We would first like to felicitate Ms. Ginni Bakshi. May we request our dignitaries to please kindly present the token and planter to her.
Audience, please clapping कीजिए. One way. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am, for your gracious presence. Now, we would also like to felicitate Miss Arushi Negi to her. Please give a huge round of applause, audience. Thank you so much, ma'am, for joining us today and inspiring our students. One minute, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. Now, further delay, we invite our first speaker, Ms. Arushi Negi, to share her valuable insights on entrepreneurial leadership and the evolving startup ecosystem. Please welcome on the stage, ma'am. A very good morning to all of you present here. First of all, I would like to extend my heartfelt thanks to each one of you present here, respected faculty members, and all the young beautiful ladies, those who are present here for this session. Before beginning our session, the topic is already, we are aware of, the era of disruption with the entrepreneurship leadership skills. But before beginning it, I just want to quickly start it with a warm-up question. It's a question for you all that how many of you use DVDs and CDs today? आप में से कितने लोग DVDs और CDs use करते हो? You can easily raise your hands if you use. No one? So what do you use? क्या use करते हो in place of DVDs and CDs? Pen drive and what else? Do we have any other options also? If you have to watch a movie or any series, तो आप क्या use करते हो? Movies देखते हैं सारे यहाँ पे? Can I expect कि everybody watch movies? कितने देखते हैं? अच्छा चलो, movies बताओ कितने देखते हो? 1, 2, सारे देखते हैं. कोई किसी का hands down नहीं है. It means सब देखते हैं. कहाँ देखते हो movies? Netflix or which all other options do we have? बताओ. हाँ? Amazon Prime. Okay, Amazon Prime is there. What else? Now it would be more convenient. I can easily interact with all of you here. ठीक है. You have said Netflix. Obviously, you watch movies and series there. Amazon Prime, you have given the example. What else do we watch? What other platforms do we have? Disney, okay. Or Hotstar, nice. What else? Okay, so we have these many platforms जहाँ पे आप क्या कर रहे हो? Easily अपनी जो भी movies आप entertainment के लिए देखना चाहते हो, right? Series देखना चाहते हो, available है. But what do you think? जब आपके parents का time था, few decades back, right? आज से 10 साल, 20 साल पहले, तो लोग कैसे देखते थे movies? When these platforms were not there, क्या करते थे वो लोग? VCR, okay. And इसके अलावा और क्या options available थे?
सारे जेंजी हो, आई नो, बट कुछ तो आइडिया होगा मम्मी पापा क्या देखते थे, बताया होगा उन्होंने। हाँ हाँ, क्या होता है? खड़े होके बोल दो, इट्स ओके। ठीक है, आपने बोला कि वो सीडीज से देखते थे, डीवीडीज से देखते थे। एक्चुअल में पुराने टाइम में जब आपको कोई चीज एंटरटेनमेंट के लिए करनी पड़ती थी, लाइक वी हैव वेरी फ्यू रिसोर्सेज फॉर द एंटरटेनमेंट, जैसे कि रेडियो इज वन ऑफ देम। लोग रेडियो सुना करते थे। अगर देखने की बात होती थी तो सबको क्या देखना पड़ता था? हॉल्स में जाना पड़ता था टिकट लेकर के। अदरवाइज वो डीवीडी सीवीडी रेंटल लेते थे। रेंटल यानी कि जहाँ पे वो एक अमाउंट पे करते थे और फॉर अ फ्यू ड्यूरेशन, जस्ट फॉर अ वीक, ठीक है, या फिर 10 डेज वो सीडीज को क्या करते थे? रेंट आउट करते थे और पूरा मोहल्ला मिलकर के देखा करता था, राइट? तो ऐसे करके उनके पास एक ऑप्शन था एंटरटेनमेंट का, जहाँ पे सब वो क्या करते थे? वॉच किया करते थे। बट नाउ टाइम हैज चेंज, ये टाइम अब बदल चुका है। आप में से कोई जाता है रेंट आउट करने सीरीज? हम तो आज के टाइम पे खरीदते भी नहीं है। आप खरीदते हो? कोई खरीदता है आप में से? नहीं, ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज अब हमारे पास ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि हमें इजीली एक्सेसिबल हैं। कहाँ से? घर बैठे बैठे। हमें जस्ट एक सब्सक्रिप्शन लेना है, वो सब्सक्रिप्शन हमने लिया एंड फॉर द नेक्स्ट मंथ, और आपका ईयरली सब्सक्रिप्शन है, मंथली सब्सक्रिप्शन है, 3 मंथ्स का है, आपको सारी चीजें इजीली अवेलेबल है। आप घर पे बैठ के मूवीज देख सकते हो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, अपने चॉइसेस के अकॉर्डिंग, एंड दैट टू इन द वेरी मिनिमल अमाउंट, अफोर्डेबल अमाउंट, राइट? और ये सब हुआ कैसे? ये जो चेंज आया है, दैट चेंज ओनली इज कॉल्ड डिस्ट्रप्शन. So I wanted to explain you the meaning of the disruption which has happened in the past years or decades. आज का हमारा जो टॉपिक है which is totally based on entrepreneurship disruption of the era. ये कैसे हुआ है, ये चेंज कैसे आया है with technological advancements. हम आज उसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप अपने अंदर की entrepreneurship skills को डेवलप कर सकते हो and you can also become an entrepreneur. Do we all understand the meaning of entrepreneur? कितने जानते हो? Can we give a hands up for it? Only one half, आधा आधा, पूरा ऐसे proper. Okay. We have many from this end. I want to know. Okay, चलो. Can you explain what this word means? Entrepreneur. क्या होता है इसका मतलब? Right, right. Yeah. Okay. Alright. She said कि हमने अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया, हम उसे खुद परफॉर्म कर रहे हैं, खुद प्रोसेस करवा रहे हैं, कोई नया आइडिया लेके आ रहे हैं. That is all about entrepreneurship. Okay. I have a request for you all. See you all beautiful ladies, girls. आपको ये सेशन थोड़ा इंटरैक्टिव करना पड़ेगा. You have to instill this thought that when somebody is there, you have to be interactive. Interactive in a sense कि ये आपके लिए बहुत important है interaction करना. There is a phrase called I would rather be stupid than pretending to be an intelligent person. Whenever I start my class, I always go with this thought. And why do I prefer continuing with this thought is कि बच्चा comfortable हो. क्योंकि जब तक आप अपनी questions, अपनी दिल की बातें नहीं शेयर कर पाओगे, तब तक वो चीज आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगी, राइट? तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपके जो भी थॉट्स आ रहे हैं जिस भी क्वेश्चन में, डोंट थिंक कि कोई क्या सोचने वाला है, डोंट थिंक कि मैं कितना फुलिश आंसर दे रहा हूँ या दे रही हूँ. जस्ट बी कॉन्फिडेंट और जो भी आपके दिमाग में आ रहा है वी कैन कंटिन्यू विद दैट, राइट? ओके, ऑलराइट. ओके, बिगिनिंग विद द एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योर इज बेसिकली अ पर्सन हु comes up with a new idea. एक न्यू आइडिया के साथ आता है, राइट? और वो न्यू आइडिया क्या होता है? Which must be solving some problem in our society. हमारी सोसाइटी की कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है. Let's take an example. आप में से ब्लूटूथ डिवाइसेस कौन कौन यूज करते हो? हेडफोन्स. Many of you, right? And why do you think कि हमें ब्लूटूथ डिवाइसेस की यूज हुई है?
Why do we need this? हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी है? For comfort and ease. For comfort and ease. ओके, क्या प्रॉब्लम्स थी पहले ऐसे वायर्ड डिवाइसेस में जिसकी वजह से हमें इसकी नीड हुई है? कभी यूज किए वायर्ड वाले एयरफोन्स? Yes. सबने किए, वेरी नाइस। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आई हैं जब आपने वो यूज किया है? आई होंगी ऑब्वियसली। अगर फोन पॉकेट में डाल के वो ईयरफोन्स लगाए होते थे तो वो बार बार ड्रॉप हो जाता है। वेरी नाइस। कि जब भी हम बर्तन धुलते हैं और कानों में हेडफोन्स लगा करके बर्तन धुल रहे होते हैं तो वो बार बार ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि बर्तन धुलते वक्त आपको मूवमेंट करना होता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो वो क्या हो जाता है हमारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इवन अगर आपको अपने फ्रेंड से बात करनी है, ठीक है, और वहाँ पे भी डिस्ट्रप्शन आ जाए कि कोई आ गया आपके आसपास, एकदम से ड्रॉप हो गया है, तो वो दिक्कत हो जाती है कि बात में कंटिन्यूटी नहीं रहती है। इसीलिए आप अभी मैक्सिमम जो बच्चे यूज करते हैं और हम भी यूज करते हैं, दैट इज द बोट ब्रांड। कभी मैक्सिमम के पास होगा, लिया हुआ है सबने? Yes, ma'am. क्या यूज करते हो? ब्लूटूथ, बर्ड्स, एयर प्लग्स, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं। अब ये बेसिकली किस कॉन्सेप्ट के साथ आई थी? बोट का ओनर कौन है? अमन गुप्ता. अमन गुप्ता, राइट। शार्क टैंक इंडिया देखा है सबने? Yes, ma'am. हाँ, शार्क टैंक इंडिया में आपने जरूर देखा होगा, अमन गुप्ता वहाँ पे एज अ शार्क बैठा होता है और वो क्या कर रहा होता है? जो जितने भी एंटरप्रेन्योर्स अपनी पिच लेकर के आते हैं उनको Investment. इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है। बेसिकली दे ऑलवेज जजिंग कि ये इन्वेस्टमेंट के कैपेबल है भी या नहीं। उससे अपार्ट, सो व्हेन अमन गुप्ता कम्स अप विद द आइडिया ऑफ ब्लूटूथ, द मेन एजेंडा बिहाइंड दैट वाज कि क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में फेस कर रहे हैं विद वायर्ड डिवाइसेस, जिसकी वजह से हम एक ईज आउट लाइफ नहीं जी पा रहे। तो ही फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। उसने वो एक प्रॉब्लम को क्या किया? पिक किया। ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। दो इंडिया से बाहर भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि ऑलरेडी इस प्रॉब्लम में वर्क कर रही थी, बट इंडिया में उस टाइम तक कोई भी ऐसी कॉम्पिटिटिव कंपनी नहीं थी जो इस प्रोसेस को सोच पा रही थी या समझ पा रही थी। तो उसने ये इसीलिए लाया, अमन गुप्ता ने ये थॉट लाया, ये आइडिया लाया कि ये जब फॉरेन में हो सकता है तो इंडिया में क्यों नहीं, हम इंडिया में क्यों नहीं ब्लूटूथ डिवाइसेस बनाते हैं, वायरलेस आपके हेडफोन्स बनाते हैं जिससे कि हमें क्या हो, ईज हो। तो ही कम्स अप विद दैट आइडिया, राइट। तो एंटरप्रेन्योरशिप इट्स ऑल अबाउट ब्रिंगिंग द न्यू आइडिया, कि आप एक नया आइडिया लेकर के आओ प्लेटर में और उसे एग्जीक्यूट करो। बिफोर एग्जीक्यूटिंग दैट, हमारे पास कुछ चीजें हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आई रियली होप कि आपको एक आइडिया मिला होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है और एंटरप्रेन्योरशिप में करते क्या है। बट अब इस पूरी प्रोसेस के लिए क्या क्या चीजें आपके अंदर होनी चाहिए और आप भी एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, ये चीजें हम अब स्टार्ट कर रहे हैं वन बाय वन। ओके, era of disruption we have understood कि कैसे over the period of time throughout the decades changes आए हैं और जितनी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स थी उनके थ्रू अब चीज़ें बहुत बदल गई हैं। आज जो चेंज सोसाइटी में आया है, हो सकता है 10 साल बाद चेंजेस और बढ़ जाए, राइट। पहले क्या था, हमारे पास हमें ट्रेवल करना पड़ता था, कम्यूट करना पड़ता था। तो हाउ डू वी कम्यूट, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल थे कि हमें बस का वेट करना पड़ता था, टाइमिंगली बस स्टेशन में जाना पड़ता था, वहां जाते थे। अगर 6 बजे की बस है तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप 6 बजे से पहले बस के अंदर बैठे हुए हो, अदरवाइज आपकी बस छूट जाती है। ऐसा अभी भी होता है, वैसे ऐसा नहीं है अभी नहीं होता है, बट वी हैव गॉट मेनी ऑप्शंस। कि इसके अलावा अब आपके पास इतनी ऑप्शंस हैं कि आप क्या कर सकते हो, ओला कर सकते हो, रैपिडो कर सकते हो। ये सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल हैं या नहीं, राइट। आपको शॉपिंग करने के लिए पसीना बहाने की जरूरत नहीं है आज की डेट में। क्या करते हैं हम, कौन कौन सी वेबसाइट्स यूज करते हैं? ब्लैंकेट, 15 मिनट्स डिलीवरी, आपके डोर स्टेप पे आपको कोई आपके सारे सामान ड्रॉप करके जा रहा है। कितनी एक्सेसिबिलिटी है, क्या हमें कोई मेहनत करनी पड़ रही है उसके लिए? सिर्फ एक ही मेहनत करनी पड़ रही है और वो क्या है, ऑर्डर प्लेस। हाँ, ऑर्डर प्लेस करना पड़ रहा है। वन टैब, यू हैव टू, आपको अपने ऑप्शन सारे सेलेक्ट करने हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स आपको मंगाने हैं कार्ट में डालने हैं, जस्ट वन क्लिक में आपके पास ऑर्डर आ जाता है। फॉर दैट यू नीड मनी। एक चीज ज्यादा इन्वेस्ट हो रही है, दैट इज
मनी, बट मनी के साथ हमें क्या मिल रहा है? कंफर्ट। अब ये सारे कंफर्ट देखो, आप अपने आसपास की चीजें देखो, आपके आसपास हर डोमेन में ये चेंजेस आए हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो, जहां हम जाकर के, आई ऑलरेडी गिवन यू द एग्जांपल, जहां आप पहले जाकर के 300 की टिकट्स लेते हो और क्या करते हो, आपको फ्रंट रो सीट मिलती है 300 में, राइट, रिक्लाइनर भी नहीं मिलता है, उसमें आप क्या कर रहे हो, सिर्फ एक टाइम पे मूवी देख पा रहे हो, दैट टू विदाउट योर प्रेफरेंस, कि आप उसे फास्ट फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते, आप कोई गाना भी स्किप नहीं कर सकते, आप क्या कर रहे हो, सिर्फ एज पर द अवेलेबिलिटी उस पूरी मूवी को क्या कर रहे हो, वॉच कर रहे हो। वहीं अगर आप वो 300 रुपीज का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, तो वो आपका कितने मंथ के लिए चल रहा है? फॉर 2 मंथ्स। आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, अपने बिस्तर पे लेट के आराम से वो चीजें देख पा रहे हो। सेम विद द शॉपिंग, सेम विद द कन्वीनियंस, ठीक है, कि आपको जब कम्यूट करना है तो वहां पे भी सेम चीज हो रही है। पहले हम क्या करते थे, सेम चीज आप वेट करोगे, अब कोई वेट नहीं करना पड़ता है, आपको ट्रैवल करना है, आप ब्लाब्ला कर लो। आज की डेट में एक नया और ऑप्शन आया है हमारे पास, व्हिच इज ब्लाब्ला। आर यू अवेयर ऑफ व्हाट इज ब्लाब्ला? क्या होता है ब्लाब्ला? राइड बुक, राइड शेयरिंग होती है बेसिकली, कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो उससे आप अर्न भी कर पा रहे हो और क्या कर पा रहे हो, अगर आप ट्रैवलर हो तो आप अर्न भी कर रहे हो और आपको ट्रैवल करना है, कहीं विजिट करना है, तो आप इजीली कम्यूट भी कर पा रहे हो। तो दीज आर द थिंग्स दैट एंटरप्रेन्योर्स हैव डन। इन लोगों ने क्या किया है, ये एक प्रॉब्लम के साथ आए हैं, जिन्होंने एक प्रॉब्लम पकड़ी है सोसाइटी की और उसको सर्व करना स्टार्ट किया है, राइट? ओके, नाउ सी देयर इज वन थिंग कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या चीजें ध्यान में रखनी है हमें। ओके, disruptive giants we have discussed about. See, India startup revolution. इंडिया में अभी जो मार्केट स्पेस चल रही है, we have 100+ unicorns. How many of you know the meaning of unicorn? Whom do we call unicorns? Idea है? Unicorns are basically the companies जो कि 1 बिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू कलेक्ट करती हैं, राइट? इफ यू रिमेम्बर, कोरोना के टाइम में एक कंपनी थी जिन्होंने अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूनिकॉर्न में चेंज किया था। कौन सी कंपनी थी? किससे पढ़ाई करते थे लोग? कोई आइडिया है? बायजूस। ओके, बायजूस तो ऑलरेडी डेवलप था तब तक। एक और था फिजिक्स वाला, राइट, फिजिक्स वाला। इफ यू रिमेम्बर, जब कोरोना टाइम आया था, उस टाइम पे दैट पर्सन यूज्ड टू जस्ट रन हिज चैनल, राइट? वो सिर्फ अपना चैनल चलाते थे, बट इतना बूम आया ऑनलाइन एजुकेशन में दैट हिज कंपनी फिजिक्स वाला हैज बिकम अ यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न मींस उनका रेवेन्यू 1 बिलियन प्लस गया। सो अभी इंडिया में यू हैव एनी आइडिया हाउ मेनी यूनिकॉर्न कंपनीज डू वी हैव? वी हैव 100+ यूनिकॉर्न्स, राइट? 100+ ऐसी कंपनीज है जिनका 1 बिलियन प्लस टर्नओवर है। और ये लोग कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल नहीं है कि ये मार्स से आए हैं या फिर जुपिटर से आए हैं। व्हाट डू यू थिंक, कौन से प्लैनेट से आए हैं ये? मार्स से? कौन से? अर्थ से ही है, अर्थ से ही है। हमारे जैसे नॉर्मल पीपल इन्हीं नॉर्मल क्लासरूम्स में बैठे हुए, राइट? अभी इफ आई गिव यू द एग्जांपल, खान सर को तो सब जानते हैं। Yes, ma'am. डू वी नो खान सर? Yes, ma'am. व्हाट डू यू थिंक, कौन से बड़े कॉलेजेस से पढ़े हैं वो? Nothing. From Bihar itself. He has studied from Bihar, Patna itself. He has just done BSc. कोई एक्स्ट्रा बहुत क्रीम लेयर कोर्स नहीं किया उन्होंने। He has just done BSc. BSc करके, राइट, उन्होंने क्या किया? He has also started a startup. स्टार्टअप को हम कैसे स्टार्टअप ले रहे हैं? He has also gone to the root cause of the society. कि वहाँ पे बच्चों के पास पढ़ने के लिए क्या नहीं है? सोर्सेज नहीं है। सोर्सेज है तो वो बहुत अफोर्डेबल नहीं है। तो he has started his own channel from where he has started teaching many students. अब he has also set up hospitals there, जो कि क्या कर रहे हैं, सिर्फ 20 रुपीज में आपको पूरा ECG का प्लान करके दे रहे हैं, राइट? जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो कैसे आया है? नॉर्मल इंसान हमारे जैसे, just the dedication they required or the idea
in which they have put on their efforts, अपने efforts लगाए हैं, and they have built a beautiful career. Okay, now see, we have total 800,000 plus startups. अब startup कोई भी कर सकता है. अभी रिसेंटली इंडिया में जो स्टडी हुई थी लास्ट हमारी 2023 से 2025 की, उसमें ये बताया गया कि अभी इंडिया में प्रेजेंटली 800,000 प्लस स्टार्टअप्स हैं और ये सारी ही स्टार्टअप कंपनीज क्या कर रही हैं, रन कर रही हैं या अपने एक न्यू आइडिया को लेकर के आई हैं और उसे प्लैटर कर रही हैं, सर्विस कर रही है किसको, वी द कम्युनिटी, राइट. वी हैव नेक्स्ट जस्ट सी इट. ओके, अब एंटरप्रेन्योर हमने देख लिया क्या होता है, क्यों आइडियाज लाने पड़ते हैं, हमारे जैसे नॉर्मल लोग ला रहे हैं, बट इन नॉर्मल लोगों को हमसे डिफरेंट क्या चीज बनाती है, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट स्किल्स डू दे हैव, ऐसी कौन सी स्किल्स है जो हमें बाकियों से डिफरेंट बनाती है? Confidence, courage, commitment. Confidence, courage, commitment and what else? Ideas. Okay, ideas anybody can have, right? IQ and intellectual processions of mind. Okay, intellectual processions of the mind. All right. Anything else? Risk-taking capability. Risk-taking capability. Very nice. Okay. Now see, if you have to become a leader in the room, you should know that you have to take the path which your followers have to follow, right? यानी कि आपको वो एक पाथ अपने लिए बनाना है जिसको कौन फॉलो करने वाला है, आपके फॉलोअर्स. यानी कि लीडर्स लेड बाय एग्जाम्पल्स. लीडर को खुद एग्जाम्पल सेट करने पड़ते हैं, उसके लिए उसको कुछ स्किल्स आने बहुत जरूरी है. वो स्किल्स कौन कौन से हैं हमारे पास? फर्स्ट ऑफ ऑल विजनरी थिंकिंग. आपका विजन इतना स्ट्रांग होना चाहिए दैट यू शुड नो कि अगर मैं ये आइडिया के साथ आ रहा हूँ तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. इफ आई हैव कम अप विद अ आइडिया, is this idea going to work? If not, then what are the root causes? How can I implement it? मैं कैसे फंड रेज करूं? ये सारी चीजें आपके आइडिया के साथ आती है, क्योंकि आइडिया वी कैन कम अप विद, बट उसको इम्प्लीमेंट कराना इट्स समथिंग विच नॉट एवरीबडी कैन डू, राइट. उसके लिए आपको अपने अंदर कुछ स्किल्स डेवलप करने पड़ते हैं. नाउ सी, नेक्स्ट वी हैव दैट यू शुड हैव अ रेजिलिएंट एबिलिटी. You should be resilient. What do you understand by the term resilient? Resilience conveys that even after your failures, you are ready to take the next step. You will not sit by just taking one failure as your destination. कि आपकी एक failure की वजह से आपने वो step ahead ही नहीं लिया. Now you are not moving ahead. हमें अपने failures के बाद क्या करना पड़ता है? अगर हम एग्जाम में फेल हो जाएं, कंपार्टमेंट आ जाए, आती है किसी की? अभी आई है? बैक लगी है किसी की? नहीं. आर यू प्लानिंग कि ऐसा कुछ करना है? नहीं. ठीक है, ओके. तो अगर आपको ये है कि हमारी बैक आ जाए तो हम क्या कर देते हैं, पूरा कॉलेज पढ़ना छोड़ देते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं होता. वी अगेन गिव द एग्जाम, हम दोबारा से वो एग्जाम देते हैं. क्यों? जस्ट टू क्वालिफाई. सेम, अगर आपकी प्रोसेस में कोई आपको फेलियर आ रहा है तो आपको क्या करना है? यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इनफ कि आप अपने फेलियर से लर्न करो एंड यू कम अप विद द न्यू स्ट्रैटेजी. आपको अपना थोड़ा स्ट्रैटेजी में चेंज लाना पड़ेगा, राइट. ऑलराइट, ओके. नाउ इमर्जिंग मैनेजमेंट ट्रेंड्स शेपिंग इन फ्यूचर. दिस इज द थिंग दैट इज चेंजिंग इन नाउडेज. क्या है? एक तो स्टार्टअप्स है. स्टार्टअप्स में वर्क कराने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज की डेट में अगर कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है, दैट वन थिंग इज एआई. आर वी अवेयर ऑफ एआई? व्हाट इज एआई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. वेरी नाइस. बट व्हाट इज दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डज? क्या करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? हमने एक बहुत कॉमन टर्म सुनी है, आज की डेट में सब बोल रहे हैं कि एआई आ गया है तो ह्यूमंस की नीड नहीं रहेगी फ्यूचर में. व्हाट डू यू थिंक? इज इट करेक्ट? No. ऐसा लग रहा है कि हमारी जरूरत ही नहीं है, आगे हमें जॉब्स ही नहीं मिलेंगी क्योंकि मार्केट में एआई है. कि आजकल चैट जीपीटी से आप क्या पूछते हो? बात करते हो चैट जीपीटी से? डू यू पीपल यूज चैट जीपीटी? Yes, ma'am. क्या बात करते हो उससे? हाँ, सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन है कि मेरे पास भिंडी और आलू है पर जीरा नहीं है, अब मैं इससे क्या बनाऊं? ऐसे लेम क्वेश्चंस भी पूछते हो? मैं तो पूछती हूँ
क्योंकि मैंने 2 दिन मेथी डिप करके रखी पानी में और मॉइस्चर से वो येलो हो गई। तो 2 दिन बाद आई थॉट कि अब मैं इसे फेंक दूं क्या, बट देन आई क्लिक द पिक्चर, आई आस्क्ड ChatGPT कि ChatGPT माय मेथी हैज बिकम क्वाइट येलो फ्रॉम साइड्स, इज इट एडिबल, ये अभी खाने लायक है? तो ChatGPT ने अच्छे से आंसर दिया। उसने बताया कि हाँ, अगर इसमें कोई पंजेंट स्मेल नहीं आ रही है तो यू कैन कुक। येलो तो लीव्स वैसे भी हो जाती है, धनिया भी येलो हो जाता है थोड़े टाइम के बाद। तो आई हैव कुक्ड दैट मेथी। तो सेम माइन्यूट मिस्टेक्स, माइन्यूट प्रॉब्लम्स के लिए हम ChatGPT को रेफर कर रहे हैं बिकॉज इट हैज ऑल द आंसर्स। बट आपको क्या लग रहा है, ये जो आंसर्स हमें ChatGPT दे रहा है ये कैसे आ रहे हैं? बना कौन रहा है ये आंसर्स? कौन बना रहा है ये आंसर्स? ये आंसर सॉफ्टवेयर के थ्रू हमारे जैसे लोगों ने ही तो बनाए हुए हैं, कोई बाहर से थोड़ी आ रहे हैं। बट इनको भी प्रॉम्प्ट देना पड़ता है। ओके, कैन यू सी दिस PPT? यू ऑल मस्ट हैव सीन दिस PPT, राइट? सबने देखी? व्हाट डू यू थिंक कितना टाइम लगा होगा उसको क्रिएट करने में? 2 मिनट्स? ये तो बहुत ही कम बोल गया, इतनी जल्दी भी नहीं होता है। हाँ, फिर भी व्हाट डू यू थिंक, अगर आप एक PPT बनाओ कितना टाइम लगेगा? हाफ एन आवर कम से कम चाहिए हमें। बट ट्रस्ट मी, आई हैव जस्ट रिटन अ प्रॉम्प्ट, 1 मिनट में ये प्रॉम्प्ट लिखा है और नेक्स्ट 2 मिनट में ये पूरी PPT बन के तैयार थी। हाँ, दैट इज व्हाई यू सेड 2 मिनट्स। 2 मिनट्स का काम है। फॉर दैट यू नीड टू राइट कि राइट प्रॉम्प्ट क्या है, राइट? तो ऐसे AI का इन्वॉल्वमेंट आपके एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको AI का सही यूसेज करना पसंद, आपको पता है हाउ टू यूज इट, आप अपने आइडिया से कुछ भी कर सकते हो। गो एंड आस्क योर ChatGPT, आस्क योर Gemini, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको आइडियाज देंगे। आइडियाज के साथ साथ आप उन्हें कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, आपको रूट बताएंगे, सारे कॉजेस बताएंगे। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। आज के टाइम पे इसकी बहुत वैल्यू है क्योंकि ये सारा ज्ञान आपको एक ही प्लेटर में दे रहे हैं, राइट? यू जस्ट नो कि हाउ टू यूज दीज प्लेटफॉर्म्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अभी एवरीथिंग इज डिजिटलाइज। पहले अटेंडेंस कैसे होती थी रजिस्टर्स में, अब कैसे होने लगी है कॉलेजेस में? कैसे? रजिस्टर में। ओके, स्टिल इन रजिस्टर, बट अभी आप प्रोग्रेस करोगे। थोड़े टाइम बाद जब तुम पास आउट हो जाओगे, हो सकता है जब तुम 3rd ईयर में हो तब तक तुम्हारी फिंगरप्रिंट्स आ जाएं, बायोमेट्रिक्स आ जाएं, यू नेवर नो। दैट इज हाउ द ट्रांजिशन इज मेड, राइट, विद टाइम। ओके, ग्लोबल बिजनेस मार्केट, आपके जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं इनका विजन क्या होता है? सिर्फ आपकी सोसाइटी की नहीं, अब इसे नेशनल नहीं, इंटरनेशनल, टेक इट टू ग्लोबली। आपकी ऐसी चीजें जो प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ हो रही है वो बाहर भी हो रही है। तो बिगिनिंग से ही यू हैव द करेज, यू शुड हैव द करेज कि आप इसे ऐसे सोचो कि आप इसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म तक लेकर के जाओ, राइट? नायका सबने यूज किया है। प्रोडक्ट, मेकअप प्रोडक्ट्स कहाँ से मंगाते हो? कहाँ से? Amazon, मीशो, पर्पल ऐप, वेरी नाइस, पर्पल से मंगाते हो। और मिंत्रा से आते हैं। और कौन से प्लेटफॉर्म्स होते हैं? फ्लिपकार्ट से भी आ जाते हैं, कहीं से भी आ जाते हैं। ऑनलाइन साइट्स तो सारी अवेलेबल है, बट नायका स्पेसिफिकली जो कि किसके लिए जानी जाती है? मेकअप प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाती है, राइट? दैट प्लेटफॉर्म इज नॉट वर्किंग इन इंडिया ओनली बट ग्लोबली ऑल्सो रिनाउंड, कि जो लोग बाहर हैं वो भी यूज कर रहे हैं। सो अप्रोच ऐसे रखनी है। एसेंशियल स्किल्स, सबसे पहले आपको स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, यानी कि सबसे पहले आपको स्ट्रैटेजी बनानी आनी चाहिए। कहते हैं ना, एग्जाम से पहले कोई भी फॉर्म फाइनल करने से पहले आपको एक प्रीव्यू का मौका मिलता है। प्रीव्यू योर फॉर्म बिफोर सबमिटिंग इट टू द फाइनल वन, राइट? वो प्रीव्यू क्यों होता है? कि बिफोर एग्जीक्यूशन आप उसकी जो भी स्ट्रैटेजी बनाई हुई है उसको एक बार फाइनलाइज करो, चेक करो, देखो क्या हमने ये सही किया है, नहीं किया है। Come to the resources, collect resources and get to know more about it. Next we have data driven. आज के टाइम पे इंडिया में या फिर ग्लोबली आप कहीं भी एंटरप्रेन्योर बनना है, उसके लिए इट्स वे टू इम्पोर्टेंट दैट यू मस्ट हैव डेटा। अगर आपके पास डेटा नहीं है, आप एनालिटिकली उसको यूज नहीं कर पा रहे हो, यू वोंट बी एबल टू यूज इट। डेटा कैसे यूज करते हैं हम? डेटा, अगर मानो मुझे एक जगह जाना है और अपना प्रोडक्ट बेचना है,
बट मुझे यही नहीं पता कि मेरी कितनी ऑडियंस है, कितने लोग बैठे हैं, कितने लोग मुझे सुन रहे हैं, या कितने लोग चाहते हैं उसको लेना, तो मैं कैसे वर्क करूंगी, मैं किस अमाउंट में अपना प्रोडक्ट बनाऊंगी, मैं कैसे अपनी मार्केटिंग करूंगी। इन सब चीज़ों को जानने के लिए सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर डेटा, कि आपके पास डेटा का होना इट्स वे टू इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट वी हैव द मोस्ट क्रूशियल थिंग। आज की डेट में अगर आपके पास ये नहीं है तो एंटरप्रेन्योरशिप तो छोड़ो, you cannot pave any path without this single skill. That comes your communication. Communication, what do we understand by communication? Interaction is just a communication. Yes, sharing of thoughts and ideas. जब आप अपने thoughts और ideas को share करते हो, वो क्या होते हैं आपके? जब आप कम्युनिकेट कर पाते हो क्लैरिटी के साथ, इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन। जब रेसिपिएंट ट्रांसफॉर्मर को या फिर ट्रांसफॉर्मर रेसिपिएंट को समझ पाता है तो वो क्या होता है? कम्युनिकेशन। एक बेस्ट कम्युनिकेशन कब होगा? जब मैं आपको कुछ बोल रही हूँ और आप उसको समझ पा रहे हो, राइट? कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ आनी चाहिए कम्युनिकेशन के लिए? व्हाट डू यू थिंक? कम्युनिकेट करने के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? कॉन्फिडेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस। विद कॉन्फिडेंस एक और चीज, और क्या चीज है? नॉलेज। बिकॉज टिल द टाइम यू डोंट हैव नॉलेज यू वोंट बी एबल टू कम्युनिकेट इन अ बेटर वे, क्योंकि जब तक नॉलेज नहीं है हमें कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस बोथ आर इंटरडिपेंडेंट। इफ यू हैव कॉन्फिडेंस देन व्हाट इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? बताओ। इसके अलावा तीसरी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज होती है? लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। आप जिस भी जगह जा रहे हो, आप कोई सी भी कम्युनिटी में जा रहे हो, आप कोई से भी रिलीजियस लैंग्वेज यूज कर रहे हो, आप जिन लोगों को एड्रेस कर रहे हो, इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इन द लैंग्वेज विच दे अंडरस्टैंड, आप अपना थॉट्स इजीली कम्युनिकेट कर ही नहीं पाओगे, राइट? बट we all know that English is the language जो कि globally use हो रही है, ठीक है? The most used language अभी इंडिया में also people have started using this language. सबसे ज़्यादा यही यूज़ हो रही है for official purpose, हम यही language यूज़ कर रहे हैं. So language आज के टाइम पे speaking English is one of the factor which you cannot deny because we don't even belong to that time जहाँ पे हम बोलें कि हमारे टाइम पे resources ही नहीं थे, हम सीख ही नहीं पाए। ऐसा होता है। मम्मी और तो ये एग्जाम्पल दे देते हैं कि हमारे टाइम पे तो इतने ऑप्शंस थे ही नहीं, हमें कौन सिखाता, एजुकेशन इतना महंगा था, एक्स्ट्रा ट्यूशन चार्जेस भी कांट गए। बट आपकी जेनरेशन इतनी पावरफुल है कि आपके लिए तो ये एक्सक्यूज बिल्कुल लेम है। इफ़ यू हैव मोबाइल फ़ोन विद यू, इफ़ यू हैव इंटरनेट विद यू, अगर आप कॉलेजेस आ पा रहे हो, आपके पास लाइब्रेरीज है, यू कैन नॉट इवन शेयर दिस बड़े होके। आज नहीं तो कल कभी ना कभी हमें ये चीज़ सीखनी पड़ेगी, राइट? एम आई रॉन्ग और राइट? राइट। सो कम्युनिकेशन इज वे टू इम्पॉर्टेंट कि आपको अपनी बात को इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि सामने वाला उसको समझे। सुनना और समझना दो अलग चीज़ है, राइट? तो सामने वाला आपकी बात को समझे, उसके लिए आपकी कॉन्फिडेंस का होना, आपकी नॉलेज का होना एंड आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का होना, इट्स वे टू इम्पॉर्टेंट। जैसे आई गिव यू द एग्जाम्पल, आप सबने घर देखे हुए, सब घरों पे ही रहते हैं, राइट? आई रियली होप कोई जंगल में तो नहीं रहता है? नहीं, नो वन इज मोगली हियर, ठीक है। अच्छा, उधर डिस्कशन स्टार्ट हो गई, नो वन, आई थॉट, ऑलराइट, ओके। अब देखो, घर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? कौन सा मटेरियल चाहिए होता है जिससे घर बनता है? सीमेंट। बेसिक रिक्वायरमेंट। सीमेंट तो बाद में आएगा, बॉन्डिंग का काम करेगा। उससे पहले क्या चाहिए होता है? हाँ, ईंटें। वेरी नाइस। हमें चाहिए होती है ईंटें, ब्रिक्स, एक घर बनाने के लिए। घर का साइज कौन डिफाइन करता है? जितनी ईंटें होती है उतना ही बड़ा मकान बनता है। जितनी ज्यादा ईंटें होंगी उतना ही बड़ा मकान बनता है, नहीं बनता है? अगर ईंटें कम है, अगर हमारे पास पैसे कम है, कम ईंटें ला पा रहे हैं तो छोटा ही मकान बना पा रहे हैं। वैसे ही जितने ज्यादा वर्ड्स आपको पता होते हैं ना, व्हेन यू आर अवेयर कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, उतना ही अच्छा आप अपने आइडियाज को कन्वे कर पाते हो।
अगर आपके पास वर्ड्स ही लिमिटेड है तो आप अपने आइडियाज कभी आगे कन्वे ही नहीं कर पाओगे, आप उन्हें उतना अच्छा आर्टिकुलेट कर ही नहीं पाओगे, राइट? तो कम्युनिकेशन का, दिस इज द पावर ऑफ कम्युनिकेशन, दैट यू शुड नो द वर्ड्स। वर्ड्स पता होंगे तभी आप कन्वे कर पाओगे। तो वही एक थॉट है कि जितनी कम ईंटें होंगी, जितनी छोटी ईंटें होंगी उतना छोटा मकान बनता है, और जितनी ज्यादा ईंटें होती है उतना बड़ा मकान बनता है। तो सेम अप्लाइज विद अस, राइट? ओके, moving ahead, communication, your strategic thinking, data driven, these three things are there, and after this one and the most important, that is funds. entrepreneur बनने के लिए आपको चौथी सबसे important चीज, 4 चीजें जो required है, उनमें से जो लास्ट है that is your funds. funds कहाँ से generate होते हैं? Obviously क्योंकि अगर आपके पास आइडिया नया आया है, आप सच यंग एज में स्टार्ट कर रहे हो या फिर किसी भी एज में स्टार्ट कर रहे हो, funds is something that is needed. But do we have funds? अगर हमारे पास funds नहीं है तो क्या हम आगे अपने आइडिया को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते? कर सकते हैं और नहीं कर सकते? You can. There are many incubation centers जो कि गवर्नमेंट ने रन करे हुए हैं। आपके आसपास if you go to the people, they will help you. They will invest in your idea if you have a strong idea, right? So if we count on our fingers, we have only 4 fingers. Can you tell me the 4 things which are the must things to become an entrepreneur? Can we count it on? Starting with the first one, which we have discussed. Strategic thinking. Very nice. Can we have it all together? सब एक साथ बोल सकते हैं? First one, what is required? And the next? Data. Data driven. We have to be data driven. Okay. Third one. Communication. And the last one, funds. If you have clarity about these 4 things, trust me, anyone can become an entrepreneur. आप यहीं पे, हमारी प्रॉब्लम क्या है? I'll tell you, because we all are girls here. I can totally relate with all the girls and ladies here. Everybody can. When we were in your age, we were also sitting on those chairs. और हमें कोई सेशन देता था, हमें कोई समझाता था, तो we used to take that thing lightly, right? हम वो थॉट ही नहीं आने देते थे, हमारा दिमाग उस तरीके से रन ही नहीं करता था। But you need to understand, time has changed. You people are so powerful. I am telling you, you just have to believe in yourself. कोई बेकार सी ही थॉट है, but just believe in yourself. ये कोई बाहर से आप पे नहीं इन्वेस्ट कर सकता है। जो चीज़ आप अपने within feel करते हो, you have to be strict enough. You have to push your brain in such a direction कि okay, I am thinking this, I'll work on this. 10 चीजें सोचोगे, 10 चीजें नहीं होंगी। लाइफ में 20 चीजें सोचोगे, वो भी नहीं होंगी। पर कहीं ना कहीं जाके 25, 30, 100 पार करके एक चीज तो होगी। बट उसके लिए इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव टू बी सीरियस इनफ, यू हैव टू थिंक। आई अंडरस्टैंड कि अभी हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं। विद आवर स्टडीज हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्या फील करते हैं, बर्डन फील करते हैं। बट ट्रस्ट मी, बीइंग अ गर्ल, आई कैन टेल यू हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू बिल्ड योर ओन करियर। और ओन करियर सिर्फ जॉब्स नहीं लेके आती है, ये एक सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है वेयर यू कैन बी योर ओन बॉस। आपको किसी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आप खुद अपने बॉस बन जाओगे, आप दूसरों को हायर करोगे और दूसरे आपके अंडर काम करेंगे। हाउ ब्यूटिफुल इट इज, राइट? ओके, because we have always heard कि when a girl is born, she brought up in a family, she is always dependent on her father till the time she is not an adult. जब तक वो adult नहीं है वो अपने father पे depend करती है। फिर जब वो बड़ी हो जाती है फिर अपने husband पे depend करती है, ऐसा बोला जाता है, right? फिर husband के बाद जब वो बूढ़ी हो जाती है तो किस पे depend करती है? अपने बच्चों पे। That we also consider as in society कि वो अपने बेटों पे डिपेंड करती है। That throughout our life we are always dependent on someone else, right? But जब the transition that has come, ये जो transition है women empowerment का, you should feel it. अभी से अपने दिमाग में इंस्टिल करो इस थॉट को कि ये कॉलेज टाइम इज द मोस्ट प्रेशियस टाइम, जहाँ पे यू हैव एम्पल ऑफ टाइम। इतना टाइम है ना आप लोगों के पास,
आप लोगों को ये प्रेशर नहीं फील होना चाहिए कि हमारे पास एग्जाम्स हैं, हमें ये करना है, हमें, यू शुड बी हैप्पी। प्रेशर इज अ प्रिविलेज। अंडरस्टैंड करते हैं उस टर्म को? ज्यादातर स्टूडेंट प्रेशर को क्या लेते हैं? प्रेशर की तरह लेते हैं, बट वी नीड टू टेक दिस प्रेशर एज अ प्रिविलेज कि अगर आप अपने कॉलेज टाइम में ये सारी चीजें सोचना स्टार्ट करें, राइट, तो आप बहुत जल्दी सक्सेस ले सकते हो, एंड इट्स वे टू इम्पोर्टेंट। आई होप हमारा आज का जो एजेंडा था एंटरप्रेन्योरशिप का, उसमें जो 4 फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है वो सबके दिमाग में क्लियर है? डू वी हैव क्लैरिटी इन ब्रेन कि हमें ये 4 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट अदर ऑप्शंस डू वी हैव इफ यू हैव टू बिकम एंटरप्रेन्योर? क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन है आज के टाइम पे? यू कैन गिव इट अ थॉट। आपके आसपास कोई ना कोई पक्का कर रहा होगा ये चीज, किसी ना किसी को तो देखा होगा। इंस्टाग्राम में इन्फ्लुएंसर्स हैं बहुत सारे। हाँ, थोड़ा सा अपना जरा रील स्क्रॉल करो, दिमाग में 10 सेकंड के लिए आइज क्लोज करो। आएगा, हाँ, टेक योर टाइम, टेक 10 seconds, क्लोज योर आइज, गो टू योर इंस्टाग्राम रील। अब चेक करो क्या आ रहा है स्क्रॉल करते हुए। कोई आ रहा है? कोई इन्फ्लुएंसर आ रहा है? नहीं आ रहा है, अभी तक नहीं आया। फिर देख क्या रहे हो तुम लोग रील्स में? हैं? देख क्या रहे हो ये तो बताओ। आया किसी के, कोई बता रहा है, बताओ। यहाँ से कोई बोल रहा था, कौन बता रहा है? अब सी, किसी ने बालिका वधू देखा है कभी? इतने पुराने हो तुम लोग? हैं? ठीक है, बालिका वधू एक और आता था, क्या था वो जी टीवी में, डोली अरमानों की, देखा है? क्या है उस लड़की का नाम नहीं पता? ठीक है, तो शार्क टैंक अभी देख रहे हो रिसेंटली जो चल रहा है ये वाला? नो? ओके, आई एम ऑल्सो मिसिंग आउट द नेम ऑफ दैट गर्ल, बट जो वो आनंदी थी ना 16 years वाली जिसकी शादी हो गई थी, ठीक है, वो शी हैज ऑल्सो स्टार्टेड हर ओन स्टार्टअप। उसने भी अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया है, एंड शी हैज कम दिस टाइम इन शार्क टैंक इंडिया, जहाँ पे उसने भी एक प्रोडक्ट बनाया है, राइट? तो इट्स नॉट दैट कि कोई बाहर से या फिर कोई एक स्पेसिफिक फील्ड का है, हम कॉमर्स के हैं या फिर हम BCA कर रहे हैं या फिर हम साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो हम ये नहीं कर सकते। दिस एनीवन कैन डू, राइट? ओके, मूविंग अहेड, we'll keep this, see this, is it visible to everyone? ये दिख रहा है सबको? किस किस को पहचानते हो इनमें से तुम लोग? किसको पहचान रहे हो? No clarity? Okay, I'll give you the example. Okay, this is your Vinita Singh. Vinita Singh को कौन कौन जानता है? Yes, who is she? Sugar Cosmetic owner, right? Okay, she is there. अभी देखो विनीता, ये भी शार्क टैंक में आती है, आई थिंक ये फर्स्ट वाले एपिसोड में आई थी, फर्स्ट जो इनका स्टार्ट हुआ था सीजन, उसके बाद भी थी, बट आई डोंट नो अभी। विनीता सिंह, इसने शुगर कॉस्मेटिक स्टार्ट किया। व्हाट डू यू थिंक, शी इज फ्रॉम विच बैकग्राउंड? कौन से बैकग्राउंड से है? शी हैज डन इंजीनियरिंग, दैट टू IIT से इसने इंजीनियरिंग करी, बट देन आफ्टरवर्ड शी स्विच टू IIMs। इसने फिर उसके बाद MBA किया, एंड देन शी स्टार्टेड हर ओन स्टार्टअप। अभी ये भी यूनिकॉर्न्स में से एक है, राइट? शी इज वन ऑफ द एग्जाम्पल कि आप किसी भी डोमेन से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। द आइडिया, द थॉट, द कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम विद इन। ओके, नेक्स्ट वी हैव फाल्गुनी नायर। फाल्गुनी नायर को जानते हो? इनको 2023 में वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। कौन है ये? अभी हमने इनकी एप्लीकेशन की बात करी थी थोड़ी देर पहले। यस, शी इज द फाउंडर एंड द ओनर ऑफ नायका, राइट? शी इज ऑल्सो द वुमेन। इन्होंने भी क्या किया है? शी हैज ऑल्सो स्टार्टेड हर करियर। Beginning में she was also working in the corporate, but later on she thought that this is I have to do some professional course, जिसके लिए मैं क्या करूँगी? मेरे को MBA करना पड़ेगा, मेरे को हायर स्टडीज करनी पड़ेंगी, and then I'll start my own startup. अब देखो स्टार्टअप तो इन्होंने किया, and she was phenomenally doing well, बहुत phenomenal कर रही हैं अभी।
तो women of the award, अगर ईयर का अवार्ड इनको मिला है, that means she was doing exceptionally well. Next we have पीयूष बंसल. इनको कौन जानता है? ये कौन है पीयूष बंसल? नाम सुना है कभी? सुना है किसी ने? आई थिंक कौन बोल रहा है इधर से? कॉन्फिडेंटली बोलो. दिस इज द कॉन्फिडेंस दैट यू नीड टू ब्रिंग टू द टेबल. ऐसे छुप के क्यों बोलते हो? पीयूष बंसल लेंस कार्ड. हाँ, अभी बोला ना आपने. तो कम विद द कॉन्फिडेंस एंड देन से यस पीयूष बंसल, ही इज द ओनर ऑफ लेंस कार्ड. हम सभी स्पेक्स पहनते हैं, राइट? अब ये देखो, ये भी क्या है, इन्होंने भी अपना स्टार्टअप किया और ये फर्म इतनी रिनाउंड है कि अब एवरीबडी वांट्स टू गेट द स्पेक्टिकल्स फ्रॉम लेंस कार्ड ओनली. देन वी हैव मेनी एग्जांपल्स ओवर हियर. आपका ओला हो गया, जोमैटो हो गया. जोमैटो का ओनर है, उसने क्या किया? ही कम्स अप विद द प्रॉब्लम कि लोगों को क्या करना पड़ता है, घर से बाहर आना पड़ता है फूड के लिए, टाइम वेस्ट होता है. इससे अच्छा ऑर्डर करो, इनडायरेक्टली आपके घर पे फूड डिलीवरी हो जाएगी. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स व्हिच दे हैव सॉल्व. तो ऐसी कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी. वी आर डूइंग एन एक्टिविटी. दिस इज नॉट गोइंग टू टेक मच ऑफ योर टाइम. जस्ट क्लोज योर आईज फॉर 10 seconds. देयर दिस इज अ रियल इंस्ट्रक्शन फॉर यू ऑल. क्लोज करो एंड कम कि तुम अपनी डे टू डे लाइफ में कौन सी एक प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे हो. क्लोज योर आईज. आई नो एवरीबडी इज डीलिंग विद वन ऑफ द प्रॉब्लम. कोई ना कोई प्रॉब्लम है. जिसने ऐसे सर पकड़ा है वो तो आई अंडरस्टैंड कि ससुराल की प्रॉब्लम से परेशान है ना. अब ये नहीं करना है. आईज क्लोज. जस्ट थिंक डीपली. दिस इज योर टाइम. इन्वेस्ट इन योरसेल्फ. सोचो. टेक योर टाइम. 20 seconds, 30 seconds. लो, अपना टाइम लो. Everybody is dealing with one of the problem in our day-to-day life. कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. Take your time, take your time. सोच लिया? सोच लिया सबने? डन? क्योंकि मैं पूछने वाली हूँ, तो अगर आप प्रोएक्टिवली आंसर नहीं करोगे तो अब मैं पिक करने वाली हूँ. पिक एंड ड्रॉप. इफ यू वांट मी टू ड्रॉप इट हियर यू कैन हाइड योरसेल्फ, बट इफ यू विल कम बाय योर ओन एंड विल शेयर योर आइडियाज इट विल बी मोर एनकरेजिंग टू एवरीवन, राइट? तो अब मुझे कौन बताने वाला है? पहले तो रेज योर हैंड्स जिन सबने क्लैरिटी के साथ सोच लिया है. नो हैंड्स. तो तुम सबकी लाइफ बड़ी मस्त चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में. बिल्कुल गर्दन हिला रहे हो, कोई दिक्कत ही नहीं है मैम. ऐसा हो ही नहीं सकता. बस नहीं आती है, ठीक है. तो ठीक है, अभी बताना नहीं है, सोच लिया है ना. ओके, इफ आई स्टार्ट पिकिंग अप विल यू बी एबल टू कम हियर? आ जाओगे फिर? तो चलो अपने आइडियाज खुद बताओ. एनी 5 volunteers आई वांट. चलो 5 नहीं, फॉर यू 3 ओनली. 3 वॉलंटियर मुझे बताओ जिन्होंने अपनी प्रॉब्लम सोच ली है दिमाग में. कौन है वो? कोई नहीं? किसी को प्रॉब्लम ही नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है? ओके बान, वेरी नाइस. व्हाट्स योर नेम? दिव्या. कैन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिव्या? दिस इज द कॉन्फिडेंस दैट वी नीड. सबसे पहले कॉन्फिडेंस. अभी बात करी इतना कॉन्फिडेंस की. यस दिव्या. मैम अनएम्प्लॉयमेंट है. आज के टाइम पे मेंटल इश्यूज इतने हैं कि बच्चा इतने प्रेशर में रहता है, वो शेयर नहीं कर पाता किसी को भी. सोचता है अभी किससे शेयर करे, पेरेंट्स से नहीं कर सकता, फ्रेंड से नहीं कर सकता, सब मजाक बना लेंगे. यही होता है कि कोई क्या सोचेगा. वेरी नाइस, वेरी नाइस. ओके, सो दिव्या, व्हेन यू आर डीलिंग विद दिस प्रॉब्लम, आप क्या सोचते हो कि अगर आपको ये प्रॉब्लम फील हो रही है तो आपके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स और भी होंगे जिनको ये सेम प्रॉब्लम हो रहा होगा, राइट? सो डू यू हैव एनी सोल्यूशन फॉर इट? कभी सोचा है कि ये प्रॉब्लम ना होती अगर ऐसा होता तो? क्या वो चीज़ है, बताओ. थोड़ा मैम पेरेंट्स का एज गैप लगा लो या फिर मतलब जनरेशन गैप लगा लो कि हम अपने पेरेंट्स को वो चीज़ें उतने आसान तरीके से नहीं समझ. जनरेशनल गैप है कि वो जिस सराउंडिंग में अडेप्ट किए और हम जिस सराउंडिंग में हैं, दैट इज वे टू डिफरेंट, राइट? बट आपको क्या लगता है, आप ऐसा क्या कर सकते हो कि ये सोसाइटी की प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो जाए, कि आपके साथ वाली लड़कियों की ये प्रॉब्लम थोड़ी मिनिमाइज हो जाए?
क्या कर सकते हो आप ऐसा? सोचा है कभी? नहीं। दिमाग ही नहीं चलता मैम, क्या ही बताए, किसी को बता ही नहीं सकते। तो दैट इज द प्रॉब्लम, यही तो एक प्रॉब्लम है। देखो सी, लाइफ में प्रॉब्लम्स ऐसे नहीं है कि रशिया ने बम फोड़ दिया हमारे सिर पे, ये बड़ी वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी अभी, ठीक है? वो तो एंड कॉन्सिक्वेंस है कि होगा कभी ना कभी वो भी, बट प्रॉब्लम्स यही होती हैं, बहुत माइन्यूट, मिनिएचर, जिनको हम फील करते हैं बट डिस्कस नहीं कर पाते। अभी शी टुक द करेज टू से दिस थिंग इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, एंड ट्रस्ट मी, यहाँ पे बैठी हुई जितनी भी लड़कियां हैं, ऑल ऑफ यू, आपके अंदर भी कहीं ना कहीं ये फेयर है। 100 में से 95-98% लड़कियां हैं जिनके अंदर ये चीज़ है, जो उस चीज़ से स्ट्रगल कर रही हैं, बट शी गॉट द करेज, शी गॉट द कॉन्फिडेंस, शी हैजंट, अभी उसके पास आंसर नहीं है, शी हैज नो आंसर्स अभी, बट शी विल डेफिनेटली फाइंड वन डे, वो फाइंड कर लेगी। पता है क्यों? क्योंकि उसको एटलीस्ट प्रॉब्लम क्लियर है अपने दिमाग में। तो सेम यू हैव टू डू। ओके, अभी यू डोंट हैव एनी स्ट्रैटेजी, वी अंडरस्टूड। ओके, अब आप इसको अगर सोचो कि मैं इन फ्यूचर क्या ऐसा कर सकती हूँ कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्या 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 कर सकती हो? मैम आजकल ये बच्चे क्लब्स जाना पसंद करते हैं, मौज मस्ती पसंद करते हैं, क्यों ना एक क्लब ऐसा खोल दिया जाए जहाँ पे सब लोग आए और उन्हें अपनी प्रॉब्लम शेयर करने का मौका मिला है और फिर उन्हें सॉल्यूशन दिया जाए। लाइक वो आए, बताएं और उन्हें बोला जाए कि आप ये चीज़ कर लीजिए, ये सॉल्यूशन आपके साथ है, या फिर आप हमारे साथ जुड़िए, उन्हें ट्रिप्स वगैरह पे लेके जाया जाए, लाइक दैट। वेरी नाइस। सी, कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है, राइट? पीपल ऑफ आवर एज यूजुअली लाइक टू डू क्लबिंग, राइट? क्लबिंग नहीं करा तो बाहर घूमने चले गए, है ना? उससे अच्छा उनके पास सोल्यूशन भी है। शी ऑल्सो हैज अ सोल्यूशन कि वो हो सकता है फ्यूचर में जाके नेक्स्ट ईयर, थर्ड ईयर अपने टीचर से डिस्कस करके बोले कि मैम वी नीड टू फॉर्म अ ग्रुप, हम एक एसोसिएशन बनाते हैं स्टूडेंट्स की, जहाँ पे ऐसा हो सकता है। तो शी इज ट्राइंग टू सॉल्व, हो सकता है वो अपना एक पेज लैंड कर दे इंस्टाग्राम पे, इसी के चलते उनका क्या हो जाए, स्टार्टअप स्टार्ट हो जाए। यू नेवर नो, यू नेवर नो, ऐसे ही तो होता है। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। उसके लिए आप करोगे क्या? अभी आपने बहुत अच्छा चीज़ किया, जो 4 चीज़ें हमने सीखी, आपने कॉन्फिडेंस दिखाया, क्लैरिटी दिखाई आपकी कम्युनिकेशन में, डन। आपने स्ट्रैटेजी भी बता दी, जो हमने स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की थी। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप क्या था जिसके ऊपर आप बात कर सकते हो? अभी आपने आइडिया दे दिया, सोल्यूशन दे दिया, अब थर्ड चीज जो हमने डिस्कस करी थी उसके ऊपर बताओ कुछ। डेटा ड्रिवन, आई विल गिव यू, अगर डेटा ड्रिवन है थर्ड पॉइंट, तो अब आप क्या बताओगे? कम्युनिकेशन। तो मैम बेसिकली होता तो यही है, मेरे किसी फ्रेंड्स के साथ या रिलेटिव में या फिर मेरे कजन्स होते हैं, वो परेशान होते हैं, मैं तो बैठ जाती हूँ, भाई बताओ, चल कोई बात नहीं, ना बताने की भी है, बता दे, मैं जज नहीं करूँगी, तो मैं तो कर लेती हूँ बैठ के बातें, जो मेरे पास सॉल्यूशन होता है मैं दे देती हूँ उसे। वेरी नाइस, वेरी नाइस, दिस होल कॉन्सेप्ट वी गॉट इट। दिव्या, वी आर जस्ट गोइंग टुवर्ड्स कि हम एंटरप्रेन्योर की जो 4 यूनिट्स है ना, उनके ऊपर आपके इस प्रॉब्लम को लेकर के जाना चाह रहे हैं। जैसे फर्स्ट आपने बताया, प्रॉब्लम बताई, देन यू टोल्ड अस द सॉल्यूशन, यू हैव द स्ट्रैटेजी कि ऐसे क्लब्स बनाएं, ये बनाएं, 2 चीजें सॉल्व है। थर्ड आपका इम्पॉर्टेंट डेटा, डेटा के लिए आप क्या करोगे? इफ यू हैव टू कलेक्ट द डेटा, डेटा के ऊपर भी तो वर्क करना है, डेटा एनालिटिक्स। मैम सबकी अलग-अलग प्रॉब्लम्स होती है ना, किसी को अपने परिवार की प्रॉब्लम है, किसी को करियर की है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो उसके हिसाब से फिर हम निकालेंगे सॉल्यूशन। वेरी नाइस, दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू कलेक्ट द डेटा, कि हमने लोगों को डेटा कलेक्ट करेंगे कि कितने लोग इस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, कितने लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, एंड देन वी कम अप विद अ क्यूमुलेटिव सॉल्यूशन। वेरी नाइस। एंड द लास्ट पॉइंट, व्हाट वाज द लास्ट पॉइंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? यस, हाँ सबने आंसर दे दिया, फंड्स। जब मानो अब आप समझो आपकी प्रॉब्लम आधी सॉल्व हो चुकी है दिव्या, कम टू द लास्ट एजेंडा, दैट इज फंड्स। आपने सब सोच लिया, सारी प्लानिंग्स कर ली है, यू हैव ऑल द सॉल्यूशंस, यू हैव गॉट द करेज। अब आप बताओ कि लास्ट जो फंड्स है ये कैसे कलेक्ट करोगे? कुछ अपनी सेविंग्स में से, थोड़ा पेरेंट्स से, कोई गवर्नमेंट स्कीम्स होगी वहाँ से, थोड़ा फ्रेंड्स से, या फिर हम एक ग्रुप बनाए जहाँ पे इस चीज़ के बारे में बात करें, थोड़ा वहाँ से। Way too good. Just give a big round of applause to them. Very nice, Deva. Please sit down. And thank you so much. See, this is the thing. आपको प्रॉब्लम्स यहीं से मिली,
सॉल्यूशंस यहीं पे बनाए, हमने जो पॉइंट्स डिस्कस किए वो सारे पॉइंट्स को उन्होंने इंक्लूड किया एंड शी गॉट द आइडिया। अब ये बहुत रूट समझते हो ना, रूट कैसे आती है किसी भी प्लांट की, बहुत माइन्यूट आगे जाके स्ट्रॉन्ग होती है। सेम हैपेंस विद अस। आप अभी बैठ करके अगर थोड़ा सा सोचो, इन डेप्थ में जाके घर पे 20 मिनट्स निकालो, हफ्ते में एक दिन भी खुद को दो, खुद के ऊपर काम करो, you are surely going to rise in your life. And I can tell you कि हर एक बच्चा ये कर सकता है। Done. So are we clear with today's session कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या था? What was it? Entrepreneurship, leadership in the era of disruption. Have you understood the meaning of disruption? सबको क्लियर है? What is it? अब आप मुझे एक बार रिव्यू दोगे फटाफट से। एक एक करके कोई भी वॉलंटियर कर लो, then we are wrapping up the session. I'll give you little more insight about the career opportunities. But before that, I want to conclude कि आपके दिमाग में क्या क्या चीजें फिक्स हुई हैं। I just want to instill this कि आप अगर मैं यहाँ आई हूँ तो ये 4 चीजें अपने ब्रेन में स्कैन करके जाओ आप एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड। हाँ जी, कमिंग अप विद द आइडिया। एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? ऑल टुगेदर हु ऑल आर एंटरप्रेन्योर्स? प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ न्यू आइडियाज के साथ आते हैं। ओके, और एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? क्या चाहिए होता है? Some skills, among which 4 are the most prominent. That is, and very nice. Next, nice. All right. अब इन सबको काम करने के लिए किन किन चीजों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है? इन 4 चीजों को करने के लिए किन चीजों का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है? Knowledge, very nice. We have discussed this factor. Confidence, way too important. Language proficiency, right? Very good. I am satisfied कि at least हमारे ये 5 जो 4 मेजर कॉज थे और उन चारों को अचीव करने के लिए जो 3 मेजर चीजें थी वो आपको क्लियर है, राइट? अब देखो ये जो प्रोफिशिएंसी है, व्हाट डू यू थिंक कि इसको बनने में कितना टाइम लगता है? एक दिन में, एक हफ्ते में, कितना टाइम लगेगा? कितने टाइम में यू कैन प्रॉमिस कि इतने टाइम में हम कर लेंगे ये चीज? एक हफ्ता नहीं, ऐसे क्यों बोल रहे हो? यू आर जस्ट गिविंग मी मर्मरिंग साउंड लाइक। हाँ, इसको बनने में टाइम लगता है। तो स्टार्ट वर्किंग नाउ। नाउ इज द ओनली फेज कि अगर आप अभी सोचोगे तो ही जाके वो कल परसों तक निपटेगा या आने वाले 5-6 सालों में होगा। आज गया, आज चला जाएगा, कल आएगा, कल भी चला जाएगा, एंड टाइम गोज ऑन। टाइम ऐसे ही पास हो जाता है, राइट? ओके, गिनी मैम, वुड यू लाइक टू एड्रेस और शैल आई? हाँ, ठीक है। Gini ma'am will address few of the things with you people. Just listen to her carefully. Thank you. Good afternoon everyone. Hope आप सभी बच्चों को जो आरुषि मैम ने सेशन आज डिलीवर किया है आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हुई है उस चीज़ को लेकर के, ठीक है? और अब जो आज हमारा सेशन यहाँ डिलीवर करने का पर्पस था, आप लोगों को एक अवेयरनेस हो कि अगर आपने अपना कोई सेल्फ स्टार्टअप करना है तो उसके लिए क्या क्या चीजें आपको चाहिए। अंदर से ज़ील और फील का होना बड़ा जरूरी है। मैं भी इस टाइम पर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क कर रही हूँ जो कि एक सेल्फ स्टार्टअप की तरह ही है। हिट बुलजाई का नेम आप लोगों ने सुना होगा, हिट बुलजाई यमुनानगर, जहां पर हम बच्चों को वेरियस करियर ऑप्शंस के लिए अवेयर करवाते हैं। मैं थोड़ा सा हिट बुलजाई का ब्रीफ कर देती हूँ। हिट बुलजाई यमुनानगर इज बेसिकली फॉर कैट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, कॉमन एडमिशन टेस्ट, एमबीए। जो बच्चे एमबीए करते हैं, और सर मैम, मीनाक्षी मैम, विवेक मैम, निशी मैम, ये सब मतलब इन्हीं से मैं पढ़ी हूँ। लाइक मैं भी यहीं की स्टूडेंट हूँ, डीएवी गर्ल्स कॉलेज की। तो आज मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में एज एन असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो आप ये देखो कि आपको अपने कॉलेज से, कॉलेज लाइफ एक ऐसी लाइफ होती है जहां से आपको सारी चीजें सीखने के लिए मिलती हैं। यहाँ पर अगर हम 10 बार भी गलती करते थे तो मैम का हमेशा यही होता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट आपने ट्राई किया है। और अभी तक मैं देख रही हूँ यही पॉलिसी चल रही है। इतने सारे जो स्टूडेंट्स हैं
आप बहुत अच्छा आंसर कर रहे थे, पीछे से भी वन स्टूडेंट दिव्या जिन्होंने बहुत अच्छा आंसर किया। तो बस कॉन्फिडेंस ले आओ अपने अंदर, बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। चीजें गलत भी जाएंगी, सही भी होंगी। ऐसा नहीं है कि सब कुछ सही चलेगा, गलत भी जाएगा, बट उस गलत को हमने कैसे करेक्ट करना है विद पॉजिटिव एटीट्यूड। एक क्या होता है कि आजकल हम नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं, तो उस चीज को असाइड करते हुए नेगेटिव में से भी पॉजिटिव निकाल लेना, वो एक सक्सेस की होती है। तो उसी को हमें फॉलो करना है। एंड बेटे आप लोगों के लिए एक स्पेशल इनविटेशन है, तो यही हो कि आज मुझे अगर कोई प्रेज करता है तो मुझे हमेशा अपना कॉलेज मतलब याद आता है। देखो यहाँ की मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे कभी कॉलेज वाली फील नहीं आई, मुझे घर वाली फील आई है, हमेशा फैमिली वाली फील आई है। तो सिमिलरली आप लोगों को भी यही चीज करनी है, बस अपने अपने एंटरप्रेन्योरशिप, क्या अपने अपने सेल्फ स्टार्टअप्स करने हैं। किसी को गवर्नमेंट जॉब में जाना है, किसी को प्राइवेट जॉब में जाना है, इसी के ऊपर कल का सेशन रहने वाला है विद सुमित पावा सर। तो अमेजिंग फैकल्टी है हिट बुल्सआई की, जो बड़े इंसाइटफुल चीजें कल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। एंड आपने अपने नेम सबमिट करने हैं। I'm sharing feedback form with you all. Let me just give you the brief about the MBA and the CAT exams. अभी हमने डिस्कस किया entrepreneurship के लिए, where I told you कि many of the entrepreneurs they have done their MBAs. क्या समझते हो आप MBA से? क्या होता है MBA कोर्स? Do you have any idea? Masters in business, right? Many of you are in from commerce background. कॉमर्स से नहीं भी हो तो MBA कोई भी कर सकता है। Eventually MBA करने का पर्पस क्या है? Why do people want to do MBA? क्या करते हैं वहाँ जाके? MBA करने के बाद बनते क्या है लाइफ में? Do you have any idea? कहाँ बनने, क्या करने वाले हो MBA के बाद? मास्टर्स सब करने वाले? फिर भी कोई आइडिया है? बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन, ओके ठीक है। सी बिजनेस तो यू विल ऑब्वियसली स्टार्ट, बट उससे पहले मास्टर्स करके यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क और टू टेक द मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, फर्म्स हैं, कॉर्पोरेट है, वहाँ पे काम करने के लिए क्या चाहिए आपको? मैनेजमेंट स्किल्स, लोगों को संभालना। एक मैनेजर कैसे बने कोई अच्छा मैनेजर, राइट? वो कब बनोगे आप? जब आपके पास मैनेजरियल स्किल्स होंगे, आपके पास ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे आप डेली लाइफ डिस्कस कर सको, जहाँ पे आप ग्रुप प्रोजेक्ट्स लिख सको, जहाँ पे आप ये डिस्कस कर सको कि आप एज अ टीम लीडर अपनी टीम के अंदर के 4 लोगों की साइकोलॉजी कैसे समझो, आप कैसे एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन फॉर्म करो। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। उसी के लिए हिट बुल्सआई इज फेमस फॉर CAT preparations, right? We prepare our students for CAT exams. मैं आपको बेसिक ब्रीफ देती हूँ CAT में है क्या। You can also become a CAT aspirant. आप भी सोच सकते हो कि उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं चाहिए, just the basic skills. CAT को क्वालिफाई करने के लिए 3 stages are there. First is your written exam. अगर आप अपना written exam क्वालिफाई करते हो, then you have to qualify your VAT. VAT होता है आपका essay writings, जहाँ पे आप essay writing second stage, and the last third stage is your interview. 3 stages and you are good to go to the best IIMs in India. In India we have total around 23 IIMs, ठीक है, जो ये मैनेजमेंट कोर्स प्रोवाइड कराते हैं। And trust me, यहाँ का एवरेज पैकेज आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट टेलिंग यू द हाईएस्ट पैकेज। अगर आप अभी भी गूगल में जाके चेक करोगे तो एवरेज पैकेज इज 25 lakhs to 30 lakhs। यानी कि एक बच्चा जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रहा है, एवरेज है, और आई बिलीव एवरेज कोई भी बन सकता है कंसिस्टेंसी से, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। वो मिनिमम पैकेज ले रहा है अपना 25 lakhs का पर एनम पर ईयर। कैन यू अंडरस्टैंड कि जितना आप लगाते हो उससे ज्यादा आपको लाइफ टाइम के लिए मिलता है? ऐसा कहीं नहीं मिल रहा है। ये इसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ता है, राइट? और आने वाला क्या है एग्जाम्स में? बहुत बेसिक्स। जस्ट सी, कैन यू जस्ट स्विच द स्लाइड? वर्बल, वन ऑफ योर सब्जेक्ट इज वर्बल, क्वांट्स, DI एंड योर्स, जस्ट क्वांट, वर्बल एंड DI। आपको सिर्फ यही काम करना है, लॉजिकल रीजनिंग। वर्बल में क्या पूछा जाता है आपसे? योर RCs, आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम बचपन से पढ़ रहे हैं, 10th, 11th, 12th सारी क्लासेस में पढ़ा है, इवन कॉलेजेस में भी पढ़ रहे हो आप अपनी कम्युनिकेशन में।
वो पढ़ रहे हो, सेंटेंस रीअरेंजमेंट्स, बेसिक टॉपिक्स। बस क्या होते हैं, थोड़े ट्रिकी होते हैं, आपको इस तरीके से पूछे होते हैं दैट यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। बट इफ यू कीप वर्किंग ऑन दैट आप इजीली कर सकते हो। मैथ्स में कुछ टॉपिक्स होते हैं आपके परसेंटेज के, आपके रेशोज के, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, मिक्सचर एलिगेशन कर रहे हो, ये सारी वो चीजें जो आप अपने प्लस 2 तक अगर नहीं भी लिया है 10 तक सबने पढ़ी है। तो ऐसा कुछ नहीं है जो आउट ऑफ द बॉक्स आ रहा है। You just need to prepare it according to the preparation. Right preparation at right time and you are good to go. Trust me. आपके ही यमुनानगर के बच्चे हैं जिन्होंने ये एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। हर्ष 96.9 परसेंटाइल, इतनी अच्छी परसेंटाइल उस स्टूडेंट ने लिख करके आई है। Now is studying one of the IIMs. अनमोल same from यमुनानगर itself. तो ये बच्चे कोई बाहर से नहीं है। यू जस्ट हैव टू बी फेथफुल कि आप अपने अंदर वो फेथ रखो एंड यू आर एबल टू कम अप विद दैट थॉट कि हमें करना है। वंस यू गेट द थॉट ना कि हमें करना है, ट्रस्ट मी आप सब कर जाओगे। आपके ही कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि प्रिपेयर भी करते हैं, आपके ही फ्रेंड्स होते हैं, बट दे विल नेवर टेल यू कि वी आर प्रिपेयरिंग। ट्रस्ट मी, जो बच्चा खुद से प्रिपेयर कर रहा होता है वो कभी नहीं बताएगा। तो गिव इट अ थॉट टू योरसेल्फ कि हमें भी करना है। एंड मैम ने आपको ऑलरेडी बताया है कि कल आप अगर विजिट करते हैं, जो भी स्टूडेंट्स अपने नेम दे रहे हैं मैम को, हम एक स्कॉलरशिप टेस्ट का मैम ने बताया है। इट कैन बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल, राइट। स्कॉलरशिप का मीनिंग आप समझते हो, अगर आप डेडिकेटेडली उस टेस्ट को परफॉर्म करते हो, यू स्कोर देम, ठीक है, आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपकी कोचिंग हो सकती है। So it's a big opportunity for all of you. आपको मैंने बेसिक आइडिया दिया ही है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, सारी चीजें हम बचपन से पढ़ रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर कि हम कर लेंगे और वो हो जाएगा। डन? ओके। इसके अलावा बाकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुमारो। जब भी आप आओगे, विजिट करोगे, विल डिस्कस मेनी मोर अपॉर्चुनिटीज, बी इट गवर्नमेंट सेक्टर और द कॉर्पोरेट वन। आपको दोनों ही एक्सपोजर्स मिलेंगे, राइट? ओके, थैंक यू। And motivating session. Your words have truly inspired all of us to think beyond boundaries and explore new possibilities in entrepreneurship and leadership. Thank you so much. As we come to the end of this enriching session, we extend our heartfelt gratitude to our esteemed speakers, respected dignitaries, faculty members, and all the students for being such a wonderful part of this event. We hope that today's session has sparked new ideas and inspired you to embrace innovation and entrepreneurship in your journey ahead. Thank you everyone for your presence and participation. Have a wonderful day ahead. Thank you so much. एसएससी के बाद क्या होगा? एसएससी के बाद क्या होगा?
इसके बाद 3 स्टार नौकरी मिलेगी। कितने स्टार्स? 3 स्टार। अब कुछ साल पहले तक जब आपने फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया होगा, है ना, फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेते ही हमारे सामने बुक्स नहीं आती है। चलो फर्स्ट क्लास में बहुत छोटी बात हो गई, थर्ड क्लास फोर्थ क्लास की बात, जब बच्चे का थोड़ा सा ना कॉन्शियस लेवल डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, बुक्स देख के लगता है यार कितनी मुश्किल, हम कैसे करेंगे। कभी किसी बच्चे को ऐसी फीलिंग आई है कि नए नए सेशन की बुक्स आई हैं मेरे पास, और इसमें तो आईएएस के बाद क्या होता है? अगर आपका आईएएस का पेपर क्लियर हो जाए तो क्या होगा? सर इंटरव्यू होगा, फिर नौकरी मिलेगी, पैसे आएंगे। पर कौन सी